टीवी ऑन करो। ट्यूसडे है ना, थर्सडे तुम्हारा EIHRP का ओवरऑल होगा, जितना भी EIHRP का हुआ है सब कुछ। ओवरऑल ठीक है। So this is the last lesson of your EIHRP. EIHRP uses dual algorithm. So dual means what? Dual means it does computation twice. First computation is called as local computation and second is called as dual recomputation. That means first, whenever any network goes down, router is going to look into its topology table. If it doesn't find a feasible successor, then what he is going to do? If it doesn't find a feasible successor, then what your router is going to do? He's going to send a query message to its neighbor. So asking for a path is the secondary thing. Primary is going to look into his own topology table. If he finds a secondary path, there is no need for router to ask his neighbor. But if the primary link goes down, if he looks into his topology table, if he does not have a path, then he has no choice but to ask the neighbor by sending a query. So query is a multicast which router will send to its multicast neighbors. Now, let's say router sends a query to its neighbor. Neighbor should reply. Now, router will wait for 3 minutes. Router sends a query to its neighbor. Neighbor should send a reply. Reply can be positive. It can be negative. Either he can say I know a path or he can say I don't know a path, but you have to give me a reply. So if router sends a query, let's say router is having 5 neighbors. If he sends a multicast query, it will go to all 5 neighbors. If out of 5, 2 neighbors gives me a positive reply that yes, I have a path. So should I wait for 3 minutes for that timer or should I use that 2 paths? वेट करेगा वेट करेगा, क्यों वेट करेगा? क्योंकि उससे बेस्ट पाथ भी मिल सकता है. Because from another 3 neighbors he might receive an update which will provide him the best path with the lowest metric value. So router will wait for 3 minutes. 3 मिनट के अंदर अगर सभी का रिप्लाई आता है, then no need to wait further. That इसका मतलब अगर 1 मिनट के अंदर ही 5 नेबर ने रिप्लाई दे दिया, he is not going to wait for another 2 minutes क्योंकि किसके लिए रुकना है फिर. लेकिन अगर 3 मिनट के अंदर अगर एक का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, then he will have to wait. ठीक है. अब इसमें हो क्या रहा है कि राउटर सेंड्स अ क्वेरी पैकेट्स टू इट्स नेबर. नेबर को उसका नेबर हो सकता है. सो राउटर विल सेंड द क्वेरी फर्दर. उसके वापस पीछे मतलब if I don't have a path to reach a specific network, I'll send a query to him, these two, because these two are my neighbors, multicast. इन दोनों को पता नहीं, इसने इसको फॉरवर्ड किया, इसने इसको फॉरवर्ड किया. मेरा 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट हुआ. How much time I'm going to wait? For 3 minutes. He doesn't know, he'll propagate the query further. Same will do with all these neighbors. I am in waiting state. I don't know why my neighbor is not responding. Neighbor को respond करने में कितना time लगता है? Not even 1 second. वो तो immediate neighbors है ना. He straight away he have to look into his routing table. If he has a path, he should send me a reply. If he doesn't have a path, he should give me a negative reply. But the problem is यहाँ पे ये neighbor की मेरे neighbor के आगे और कुछ नहीं होता. So it was very simple. I send a multicast query. They say I don't know. That's it. But what they thought,
I don't know. Let me ask my neighbors. He did the same thing. They say we have received a query, but we don't know the path. But we have neighbors. Let's ask the neighbor. तो neighbor को propagate करते करते दूर तक जाएगा वो. पूरा chain रहेगा वो. So how long your router is going to wait? I mean, what your router is going to think is, what I'm going to think is, why these two people are not responding me? Right? So I might have a doubt कि ये down तो नहीं हो गए दोनों. I don't know, क्योंकि यहाँ पे बैठ के तुम्हें पिक्चर में समझ में आता है कि ये 2 है, इसके बाद ये 2 है, इसके बाद ये 2 है. राउटर के पास ऐसे कोई पिक्टोरियल व्यू नहीं होता कि सेकंड कि मेरे नेबर को और कोई उसके आगे कनेक्ट है. Router simply knows I will be propagating a query to my neighbors. My neighbor should respond. Why my neighbor is taking so much long time? Respond क्यों नहीं कर रहे? So this state is called as stuck in active state. Inactive नहीं, stuck in active state. So we discussed about two states, passive and active. Passive means what? In your topology table, for every network, you see P. So what that passive indicates, that whatever path is there for that network, that is workable path. वो जो भी पार्ट टोपोलॉजी टेबल में है वो बेस्ट है और वो डाउन नहीं है. So that is P. When that specific path to that specific network goes down, router is going to look into his topology table. But if it doesn't find an alternative path, he is going to send a query. So that path for 3 minutes will go into active state. That means for that path, router will keep on searching. For that network, router will keep on searching for an alternative path. समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं stuck in inactive, मत बोलना कभी भी. Stuck in active state. That means for that specific network, router is not having a path. So he has sent a query. So at presently, for that specific network, router is actively trying to find out the destination, the path to reach that network. That's why we say stuck in active state. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि your R1 router sends a query because maybe 10.1.R1 is not able to communicate. So R1 router will propagate the query to R2. R2 will propagate the query to further to R3, R4. He might have multiple neighbors. R3 propagates the query to further R5, R6. R4 propagates the query further to R7, R8. ठीक है. अब ये propagate होते जाएगा. Everyone is going to look. Do I know? No, I don't know. But let me ask my neighbor. So on, so on, so on. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि this is called as switch state stuck in active state. That means router is still not having a path to reach 10.1. And he has sent a query और वो query propagate हो रहा है उसके neighbor को जा रहा है. So this is called as stuck in active state. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? R1 says I have sent a query to R2, but R2 is not responding. R1 says I have sent a query to R2. He is my immediate neighbor. 3 मिनट टाइम क्यों लगता है उसको रिस्पॉन्ड करने में? उसको तो यही तो देखना है उसको पता है या नहीं पता. ही शुड रिप्लाई. सो जनरली एक रिप्लाई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाना चाहिए. बट आउटर फील्ड सिंस माय R2 नेबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्वेरी का रिप्लाई होना चाहिए. जो रिप्लाई नहीं है क्योंकि क्वेरी अभी तक प्रोपोगेट होते जा रहा है पीछे पीछे. सो R1 feels that maybe my neighbor has gone down, which is R2, which is not correct. नेबरशिप कोई डाउन नहीं हुआ है, लेकिन R1 ने सिर्फ एक क्वेरी प्रोपोगेट किया था R2 को, उसका रिप्लाई अभी तक R1 को नहीं मिला है. So R1 says, why my neighbor is taking so much long time to just give me a reply? It can be positive, it can be negative. So what R1 feels that my neighbor must have gone down. So R1 क्या करता है? अपना neighborship refresh करता है वापस. He refreshed the neighborship with R2. इसका मतलब क्या हुआ? R1 refreshes his neighborship with R2. नेबरशिप रिफ्रेश होना मतलब क्या होगा? वापस से कनेक्शन भेजना. वापस से कनेक्शन बनाने की कोशिश करना. हाँ, मतलब क्या होगा अभी वापस? नेबरशिप रिफ्रेश होगा मतलब क्या होगा? फिर से वो प्रोसीजर होगा, ASN देखा जाए, ऑथेंटिकेशन पास. फिर से प्रोसीजर होगा. Again hellos will be sent, parameters will be compared, neighborship will be formed, updates will be received, building your topology table, finding the best path, storing those into your routing table.
तो ये पूरा प्रोसेस, और ये सिर्फ R1 R2 के बीच में नहीं हो रहा है, ये ध्यान दो। R2 ने R3 को भी वो क्वेरी प्रोपोगेट किया था, R2 ने भी अपना 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट किया, क्योंकि R2 के पास नहीं था व्हाट R2 सेज, आई डोंट नो बट आई हैव नेबर्स, लेट मी आस्क माय नेबर। तो R2 ने वो सेम क्वेरी R3 को प्रोपोगेट किया, तो R2 का भी 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट हुआ। R3 रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि R3 ने वो क्वेरी आगे प्रोपोगेट की है। R3 कब रिप्लाई देगा? When R3 will reply? अगर इसको इमीडिएटली पता होगा बेस्ट बात, या तो जब तक सामने से उसको मतलब या फिर R5 R6 से कोई अपडेट नहीं आता, वो R3 क्या कह रहा है कि मुझे पता नहीं, ये श्योर है, लेकिन आई एम गोइंग टू सेंड अ क्वेरी टू R5 एंड R6, मे बी दे माइट बी नोइंग। अगर R5 R6 अगर रिप्लाई देता है कि वी डोंट नो, देन R3 विल प्रोपोगेट टू R2, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम फंसा क्यों है? R2 सेंड्स अ क्वेरी टू R3, R3 says I don't know, let me ask my neighbor, query further R5 R6 हो गया, उसके आगे भी जा सकता है। So R3 has not received any reply from his neighbors R5 R6, तो वो R2 को कैसे अपडेट सेंड करेगा, रिप्लाई सेंड करेगा? So R2 also feels the same thing. Why my R3 neighbor, why my R4 neighbors are not responding? Are they live या down हो गए? So R2 will also refresh the neighborship with R3 and R4. R3 will do the same thing with R5 R6, R4 will do the same thing with R7 R8. तो एक टोपोलॉजी में अगर 1000 राउटर्स है, एक नेटवर्क अगर डाउन हुआ, एक नेटवर्क जिसका पाथ अगर किसी राउटर को नहीं पता, सेकेंडरी पाथ, तो राउटर क्वेरी सेंड करेगा, और राउटर तो पूरा चेन में होगा ना, ये ऐसे ही होगा पूरा सर्किट। तो ये क्वेरी कहां तक जाएगा? लास्ट जो राउटर होगा एज, वहां तक जाएगा। लेकिन तब तक सभी बीच में जितने भी राउटर्स है, हर एक राउटर अपने नेबर राउटर के साथ नेबरशिप रिफ्रेश करेगा, यानी नेटवर्क कितने टाइम के लिए डाउन रहेगा? एटलीस्ट 3 मिनट्स। 3 मिनट्स नहीं लगेगा। देखो, एक का 3 आपका सर्वर और आपका सोर्स के बीच में मान लो 100 राउटर्स है, आपका सर्वर हेड ऑफिस में और आपका सोर्स के बीच में अगर 100 राउटर्स है, तो फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, ऐसे करते बीच में जितने भी राउटर्स आएंगे, एक एक नेबरशिप रिफ्रेश करते जाएगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? सो ये क्वेरी, सेंडिंग अ क्वेरी इज अ गुड थिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है, इशू क्या, मतलब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि इफ आई सेंड अ क्वेरी, if R2 doesn't respond me or it doesn't send a reply to me, नेबरशिप रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, नेबरशिप अगर रिफ्रेश नहीं हो रहा है ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक नेटवर्क, वो 10 डॉट के लिए राउटर डज नॉट हैव अ पाथ, लेकिन बाकी तो उसका राउटिंग चल रहा है ना। अगर नेबरशिप रिफ्रेश करेगा, इसका मतलब क्या होगा, R2 से जितने भी नेटवर्क्स R1 को पता चले, वो R1 को अभी रिफ्रेश करेगा, मतलब वापस हेलो पैकेट, टोपोलॉजी टेबल वापस नए से बिल्ड होगा। तो राउटर अगर पूरे 1000 राउटर्स के टोपोलॉजी में अगर हर मिनट 4-5 नेटवर्क्स अगर डाउन हो रहे हैं, तो हर एक राउटर 1 मिनट में कम से कम 20-25 सेकंड तो उसका काम यही रहेगा रिफ्रेश करने में। तो राउटिंग कब करेगा वो? तो प्रोसेस क्या होना चाहिए था कि if R1 sends a query to R2, if R2 doesn't know, obviously it's going to send the query further to R3 and R4. ये क्वेरी का प्रॉब्लम नहीं है, क्वेरी का चलते रहेगा वो। प्रॉब्लम ये था, R1 ये समझ के बैठा कि भाई R2 is not responding, so he refreshed the neighborship with R2. R3 felt why R3 and R4 are not responding to me, so he refreshed the neighborship with R3 and R4. R3 and R4 repeated the same thing. Why R5 R6 are not responding, so he refreshed the neighborship. तो यहाँ पे neighborship refresh नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो देखते वो कैसे करता है। So this is your stuck in active state for that specific network. The router resets the neighborship relationship with the neighbor that fails to reply.
The router must get replies to all of its queries for a lost route to start calculation of successor information. जब तक उसको रिप्लाई नहीं आएगा तब तक वो नया जो अपडेट आएगा, अपडेट में क्या होगा, रिप्लाई आएगा, रिप्लाई में क्या होगा, पॉजिटिव वो 10.1 के लिए कोई दूसरा पाथ हो सकता है जो नेबर मुझे बता रहा है, तो वो पाथ जब आएगा तो उसका मेट्रिक आएगा, तो आई विल हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड हिम, एफडी, मतलब एफडी नहीं, लोकल कॉस्ट, और वो एडवर्टाइज डिस्टेंस में ऐड करना होगा मुझे, तब जाके मुझे सोर्स और डेस्टिनेशन का एफडी पता चलेगा। नेबर मुझे क्या बताएगा, नेटवर्क, और क्या बताएगा, उसका एफडी, उसका एफडी बताएगा ना वो, तो वो उसके लिए एफडी है, लेकिन मेरे लिए वो एडी है। सो आई विल हैव टू फाइंड आउट द लोकल कॉस्ट एंड आई नीड टू ऐड दैट लोकल कॉस्ट टू दैट एडी फॉर एफडी, उसके लिए था, मेरे लिए वो एडी बना, तो फिर वो एफडी में निकलेगा और फिर वो टोपोलॉजी टेबल में से राउटिंग टेबल में आएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को कैसे, इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया गया, राउटर सेंड्स अ क्वेरी मैसेज if router is not able to communicate with one specific network, वो तो प्रोसेस सेम रहा। राउटर शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 3 minutes, ठीक है। अब वो रिप्लाई क्यों नहीं आएगा, अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आएगा रिप्लाई, क्योंकि शायद मेरे नेबर ने वो क्वेरी आगे प्रोपोगेट किया होगा, सो ही इज आल्सो नॉट नोइंग, ही इज आल्सो वेटिंग, सो आई एम आल्सो वेटिंग। तो होता क्या है, एग्जैक्टली 3 मिनट के हाफ टाइम के बाद, यानी 1.5 मिनट के बाद, 1 minute 30 सेकेंड के बाद, ये R1 राउटर R2 को एक स्टक इन एक्टिव क्वेरी सेंड करता है। स्टक इन एक्टिव क्वेरी, I have queried you or I have requested you about a path to reach 10.1.1.0. What happened to that? ये stuck in active query send करेगा। Router R2 उसको reply करता है कि I still am not having or I am not getting that path. I don't have the path. But once I get, I'll inform you. इससे क्या साबित हुआ? ये डाउन नहीं हुआ है। इससे ये साबित हुआ कि R2 ने उसको reply दिया। So R1 says okay. R2 has not replied me because he is not knowing the path. Because he has not received information from R3. तो ये नेबरशिप डाउन नहीं होगा दोनों के बीच। एक होता है क्वेरी, एक होता है रिप्लाई, एक होता है स्टक इन एक्टिव क्वेरी, एक होता है स्टक इन एक्टिव रिप्लाई। क्वेरी मतलब क्या, राउटर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है एक नेटवर्क से, he is looking into his topology table, he is not having a path, he is going to multicast queries to his neighbor। अब वो क्वेरी तो उसने दे दिया, अगर उसका इमीडिएटली अगर 10 सेकंड के बाद रिप्लाई आता है तो वो स्टक इन एक्टिव क्वेरी, स्टक इन एक्टिव रिप्लाई का कंसेप्ट नहीं होगा। क्वेरी का रिप्लाई आ गया, लेकिन क्वेरी अगर वो 1.5 मिनट टाइमर एक्सपायर हुआ, मेरा 3 मिनट का टाइमर है, तो एग्जैक्टली हाफ टाइम के बाद मैंने क्वेरी अगर प्रोपोगेट किया था, मेरा टाइमर स्टार्ट हुआ 3 मिनट का, एग्जैक्टली हाफ टाइम के बाद, मतलब एग्जैक्टली 1 minute 30 सेकंड के बाद, आई एम गोइंग टू आस्क हिम अगेन, हेलो क्या हुआ, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद 10.1. आई हैव सेंड अ क्वेरी हाफ टाइम बैक, यू हैवंट रिप्लाइड मी। तो वो रिप्लाई देगा कि I also not having a path, I have sent a query further to my neighbors, if I receive I'll inform you। इससे ये तो R1 को पता चलता है कि नेबर मेरा डाउन नहीं है, तो यहाँ पे नेबरशिप कट शॉर्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कौन सा बैच है? टीम पे ज्वाइन करने के लिए बोला।
ठीक है, so this was about query reply, stuck in active query, stuck in active reply. Now, there's one concept called as EHRP stub. There's one concept called as EHRP stub. Now, let's see. Let's say you have ठीक है. Now, डाला, ठीक है. Now, if suppose let's say this network goes down, क्या होगा? क्या होगा जनरली? ये एक नेटवर्क है फोर्थ राउटर का, वो अगर डाउन होता है, तो भी है. ये इंटरनेट ऐसा मत बोलो, यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स दिखाने थे, इसलिए मैंने वो क्लाउड बनाया. यहां तक कौन है? आईएसपी है, बराबर. ये कस्टमर मतलब आपके. अभी ये नेटवर्क डाउन होता है, ठीक है, क्या होगा बताओ? हाँ, एक दूसरे को क्वेरी सेंड करेंगे हम्म, वहां तक पहुंचने के लिए राउटर क्वेरी सेंड करेंगे. ठीक है, वो R4 का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो अपडेट सेंड करेगा ना, किसको? सबको, जिसके नेबर्स. तो अपडेट वो आते आते 3 को भी पता चलेगा, 2 को भी पता चलेगा, 1 को भी पता चलेगा, ठीक है. नाउ from one router's point of view, from provider edge router points of view, he is not able to communicate with this network. Let's say ये क्या है तुम्हारा 10.0 का नेटवर्क, जो डाउन, जो इसके टेबल में था, पहले था, मे बी उसके लिए ये एक पाथ होगा, ये एक पाथ होगा, ठीक है. नाउ दिस नेटवर्क वेंट डाउन, somehow propagate होते होते पी राउटर को पता चला कि आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ 10.0 नेट. नाउ व्हाट योर राउटर विल डू? ये राउटर क्या करेगा? पी राउटर को पता चला आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ 10.0, तो उसने टोपोलॉजी में टेबल में देखा कोई पाथ है क्या, तो नहीं मिला उसको. अब आपका राउटर क्या करेगा? पी राउटर पहले वो अपने नेबर को क्वेरी सेंड करें नेबर को क्वेरी सेंड करेगा. किस नेबर को क्वेरी सेंड पहले करेगा? 2 3 को 2 और 3 2 और 3 को क्वेरी सेंड करेगा वो. हाँ, जो भी हो,
लेकिन पी राउटर 2 और 3 को क्वेरी सेंड करेगा या नहीं करेगा? उसके नेबर है तो करेगा। कितने लोग बोलते हैं करेगा और नहीं करेगा? हाँ, पी राउटर को कैसे पता चला कि 10.0 डाउन हुआ? उसको हाँ, हाँ, पी को कैसे पता चला 10.0 डाउन हुआ? हाँ, किसने अपडेट भेजा उसको? उसके नेबर के राउटर में। हाँ, मतलब कौन? 2-3 तो जिसने बोला मुझे मेरे से डाउन है, मैं उसी को क्वेरी सेंड करूँ, मुझे बता दूसरा बात। तो P2 और 3 को कोई लॉजिक नहीं ना क्वेरी सेंड करके। अगर ये मुझे पता है मेरे से डाउन है तो इसको छोड़ के मैं बाकी सबको मल्टीकास्ट सेंड करूंगा ना, इसको वापस क्यों पूछूंगा गिव मी अ पाथ? ठीक है, सो ये क्वेरी किसको सेंड करेगा फिर? इसको। इसके पास रहेगा पाथ, कोई एडिशनल पाथ कोई हो तो रहेगा? हाँ, कहाँ से? हवे में से? कहाँ से? इधर दिख रहा है क्या? हाँ, कस्टमर को पूरा दुनिया रीचेबल होता है कहाँ से? आईएसपी से। और जो भी मुझे पता चलता है वो किससे पता चलता है? आईएसपी से। तो ये 10.0 नेटवर्क सी राउटर को पता कैसे चला? पी ने कभी तो बताया होगा। अब पी को ही नहीं पता तो पी सी को क्या क्वेरी सेंड करेगा कि मुझे पता करके? तो इट डजंट मेक एनी सेंस सेंडिंग अ क्वेरी टू द एज डिवाइस। जिसको सब कुछ पता, जिसको सब कुछ मैंने बताया, उसी को मैं क्वेरी सेंड करूं कि पाथ है क्या बता करके। हाँ, ये बात अलग होता अगर इसको कोई एडिशनल ऐसे पाथ होता तो ठीक है, ये क्वेरी इसको प्रोपोगेट कर देता, ये कहता कि ठीक है आई हैव अ पाथ बाय दिस, तो ये ऐसा राउटिंग चलता, फिर ऐसा ट्रैफिक जाता ना, बराबर। लेकिन ये ऐसा कोई अगर पाथ नहीं है तो सी राउटर कस्टमर राउटर को जो भी पता है अभी तक, जितने नेटवर्क्स के अपडेट उसमें उसके है उसके पास, वो सब कुछ वाया पी है, प्रोवाइडर के थ्रू है। अगर प्रोवाइडर एक नेटवर्क को रीच नहीं हो पा रहा है तो कस्टमर को कैसे पूछ सकता है कि ये नेटवर्क का इंफॉर्मेशन तेरे पास है क्या, कोई दूसरा पाथ है क्या, जबकि पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ने ही कस्टमर को दिया है। तो कस्टमर को जो भी पता है वो भाया प्रोवाइडर है। तो डजंट मेक अ सेंस टू सेंडिंग अ क्वेरी टू अ नेबर हु इज एन एज डिवाइस। तो वो कैसे करे? हम लोग नहीं चाहते इसको क्वेरी सेंड करें। क्वेरी सेंड करेगा कोई फायदा है? तो बेवजह हर बार, मतलब whenever he is not able to reach with any network, ये हर बार इसको क्वेरी सेंड करेगा, हर बार ये चेक करेगा अपना टेबल, हर बार ये इसको रिप्लाई देगा सॉरी नेगेटिव। तो अगर ये आईएसपी का राउटर है, ये आईएसपी के क्लाउड में अगर 2-3 हजार राउटर्स है तो हर बार कुछ ना कुछ तो डाउन होगा, इसके पास आएगा। he says I don't know but let me ask my neighbor, ये इसको पूछेगा। ये राउटर का क्या लेना देना वो क्वेरी के साथ? लेकिन वो प्रोसेस में अटका हुआ है क्योंकि ये एचआरपी का प्रोसेस है। ये इसको क्वेरी सेंड करेगा, ये इसके देखिएगा टेबल में, ये रिप्लाई देगा सॉरी डोंट नो, बराबर। सो इट डजंट मेक अ सेंस टू सेंड अ क्वेरी टू अ लास्ट माइल राउटर। लास्ट राउटर मतलब जो सबसे एंड में आता है। तो वो कैसे होगा? इसको स्टब कॉन्फ़िगर करो। वंस यू कॉन्फ़िगर दिस राउटर एज स्टब, he will send a message to your neighbor router that I am a stub, henceforth please don't me in send any query। आगे कुछ भी तेरा डाउन होता है मुझे क्वेरी मत। लॉजिकली सही भी है, उसके पास क्वेरी आके भी कौन से उसके पास पाथ। तो दिस इज योर स्टब फीचर। तो स्टब आप कहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे? अगर बीच वाला राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दो। नहीं, बीच वाला राउटर पे ही अगर कर दो खत्म पूरा। इसलिए मैंने कहा कि ये एज पे करोगे।
क्योंकि आपको पता है डेफिनेटली कि उसको पूछ के भी कोई फायदा है नहीं, उसके पास कभी लाइफ में कोई पाथ होगा नहीं, जो भी पाथ उसके पास है वो वाया प्रोवाइडर के थ्रू। तो प्रोवाइडर के आगे का नेटवर्क अगर कुछ डाउन होता है तो इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर प्रोवाइडर टू send a query to the edge router because anyway he won't be having any information about secondary path. तो ऐसे राउटर्स को तुम लोग स्टब करके कॉन्फ़िगर। तो क्या बोल रहे हैं ये R1 should never use spoke। स्पोक और हब कंसेप्ट होता है। हब और स्पोक मतलब क्या? ये हब एंड स्पोक, ये आपका एज हब रहेगा और ये सभी ब्रांच स्पोक। It doesn't make any sense to send a query to the spoke। स्पोक क्लास में ही आएगा ना। तो हब को अगर कोई भी नेटवर्क रीच नहीं हो रहा है, इसके ये नेटवर्क अगर डाउन हुआ, इसको रीच नहीं हो रहा है, इसको स्पोक को सेंड करके क्या फायदा? इसको कहां से पता चला? इसने तो बताया था। तो डजंट मेक एनी सेंस सेंडिंग अ क्वेरी टू अ स्पोक राउटर। देयर इज नो रीजन टू लर्न अबाउट और क्वेरी फॉर रूट्स थ्रू स्पोक। स्पोक राउटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांजिट ट्रैफिक, दे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज स्टब। मतलब ये सभी स्टब बनेंगे, ये जितने भी नीचे राउटर ये सभी स्टब बनेंगे। हाँ, अगर नीचे से अगर कोई ऐसा पाथ होता तो बात अलग है, अगर है तो तुम उसको स्टब क्यों करोगे? इसके थ्रू कोई भी पाथ नहीं है इसलिए उसको स्टब करो। Improves network stability, reduce resolution, resource utilization. Each stub router reports its status to the neighbor. जैसे ही तुम लोग इसको stub कॉन्फ़िगर करोगे, neighbor को बताएंगे I'm stub, so query are not sent to the stub routers. अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता नहीं, अभी तो हुआ नहीं हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ना मान लो इस राउटर को तुम लोग करते हो स्टब, स्टब के साथ साथ उसके मल्टीपल फीचर्स भी आते हैं। स्टब रिसीव ओनली, मतलब जिस राउटर को तुम लोग स्टब करोगे उसके साथ ही एडिशनल फीचर्स। स्टब रिसीव ओनली, स्टब कनेक्टर, स्टब स्टैटिक, समरी, रीडिस्ट्रीब्यूट। स्टब रिसीव ओनली मतलब एक राउटर को जब तुम लोग स्टब करोगे वो सिर्फ अपडेट रिसीव करेगा, अपने नेटवर्क का अपडेट्स नेबर को शेयर नहीं करेगा। अपडेट्स मतलब क्या? एक तो व्हाट आई नो आई गोइंग टू सेंड इट टू माय नेबर, व्हाट नेबर नोस इज गोइंग टू सेंड इट टू मी। अगर आपने स्टब कॉन्फ़िगर किया और रिसीव ओनली मोड में उसको डाला तो उस केस में क्या होगा? राउटर अपडेट सिर्फ रिसीव कर सकता है नेबर को, लेकिन नेबर को अपनी अपडेट सेंड नहीं करेगा। मतलब ये तुम्हारा एक राउटर है और ये एक राउटर, इसको कॉन्फ़िगर किया तुमने स्टब, ये आपका लोकल नेटवर्क है 1.0। तो इस ये क्या है, अगर मैं स्टब रिसीव ओनली में डालूं तो यहाँ पे बहुत सारे जो नेटवर्क्स है 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ये सभी इसके टेबल में दिखेगा। रिसीव ओनली एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके टेबल में लेट्स से ये 10.0 है, 10.1, 10.2। तो इसके पास ये 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 सब कुछ होगा रीचेबल वाया 10.2। लेकिन ये अपना 1.0 इसको नहीं शेयर करेगा।
because you have configured your router as stub in receive only mode. तो जब ये 1.0 इसको नहीं पता चलेगा तो इनके पीछे जो भी नेटवर्क्स है इसका ट्रैफिक इस तरफ नहीं आ सकता. These all networks won't be able to communicate with 1.0. तो रिसीव ओनली मोड का फायदा क्या फिर? तुम लोग एक राउटर को डिक्लेयर कर दो कि तू स्टब है और तू सिर्फ रिसीव ओनली मोड में रहेगा. इसका मतलब योर राउटर कैन रिसीव अपडेट्स फ्रॉम ऑल द नेबर्स, लेकिन उसके नेटवर्क को किसी को पब्लिश नहीं करेगा, प्रोपोगेट नहीं करेगा. तो मेरा नेटवर्क अगर मैं किसी को प्रोपोगेट नहीं करूंगा तो ये जो लोग है यहाँ पे मे बी ये मेरा सर्वर फार्म है, तो ये लोग इसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे जब इसके राउटिंग टेबल में होगा ही नहीं? तो बताओ कैसे करेंगे? अगर मुझे रिसीव ओनली मोड में डालना ही है कुछ भी कर, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 2, 3, 4, 5 ये 1.0 से बात करे, लेकिन मैं ये पहले वाले राउटर को स्टब रिसीव ओनली मोड में रखना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए. तो हाउ 2, 3, 4, 5 विल कम्युनिकेट विथ 1.0? Secondary path 2, 3, 4, 5 से 1.0. एक secondary path वो वाले सारे नेटवर्क से लेके 1.0. सेकेंडरी वगैरह कुछ नहीं है. हाँ, तुम लोग इसमें क्या कर सकते हो? एडिशनल को क्या कर सकते हो तुम लोग? ये 2, 3, 4, 1 के साथ कब कम्युनिकेट कर पाएंगे? रिसीव ओनली में नहीं होता. नहीं, इन जनरल पूछ रहा हूँ, इन जनरल. ये 2, 3, 4, 5 ये 1.0 के साथ कब कम्युनिकेट कर पाएंगे? हाँ, 10.1 कब कब? When 2.0 will able to communicate with 1.0? ये 2.0 1.0 के साथ कब कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा? ये रिसीव ओनली बोल जाए, जनरल क्वेश्चन. कनेक्टेड नेटवर्क जो राउटर 1 राउटर 2 शेयर करेल एकमेकांमध्ये. राउटर 1 ने राउटर 2 ला त्याची कनेक्टेड नेटवर्क जेव्हा शेअर करेल तेव्हा. हाँ, मतलब क्या? जब तक R2 के राउटिंग टेबल में 1.0 नहीं आएगा तब तक पैकेट जब यहाँ पे आएगा तो इसको पता होना चाहिए ना 1 कहाँ पे. ये इसके राउटिंग टेबल में देखिएगा, राउटिंग टेबल में अगर 1 है नहीं इसलिए डिस्कार्ड कर रहे हैं. अगर इसके राउटिंग टेबल में अगर 1.0 आता है और रीचेबल वाया 10.1 ऐसा उसको पाथ है उसके टेबल के अंदर तो कम्युनिकेशन करेगा. लेकिन रिसीव ओनली मोड में ये अपना अपडेट सेंड नहीं करेगा. तो ही इज नॉट गोइंग टू शेयर 1.0 विद दिस राउटर. तो इस राउटर के टेबल में 1.0 नहीं होगा, इसलिए राउटिंग नहीं हो रहा है. लेकिन मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दीज पीपल टू कम्युनिकेट विद दिस. तो तुम लोग क्या करोगे? स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करोगे यहाँ पे तो कम्युनिकेट विद 1.0, क्योंकि इसके पास तो 2, 3, 4 है, इसके पास 1 नहीं है. You configure static route on this router, sending that saying that what if you want to communicate 1.0, send a packet to 10.1. तो रिसीव ओनली मोड में पूरा नेटवर्क कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा. तो तुम्हें नेबर से एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना होगा अंदर आने के लिए. समझ में आएगा नहीं? ये कुछ राउटर 1 तो वैसे भी रिसीव कर ही रहा है. पूछना. ये तू है कस्टमर एज और ये प्रोवाइडर एज. हाँ, इसको हमने स्टब किया ना, इसको स्टब किया, इसका नेटवर्क है 1.0. ठीक है, इसके आगे पूरा क्लाउड है, पता नहीं कितने नेटवर्क है. अब इसको जब स्टब रिसीव ओनली मोड में डालोगे तब यहां से इसको अपडेट तो मिलता रहेगा बराबर टाइम टू टाइम.
लेकिन ये कुछ सेंड नहीं करेगा। जब ये सेंड नहीं करेगा तब ये राउटर को 1.0 पता नहीं चलेगा। तो ये आईएसपी राउटर पे एक रूट कॉन्फ़िगर करना होगा उल्टा, कि अगर तुझे 1 के साथ कम्युनिकेशन करना है तो पैकेट सी को सेंड कर। हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कब होगा? जब राउटिंग टेबल में नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होगा। तो कुछ भी करके राउटिंग टेबल में लाओ इंफॉर्मेशन। अब पी राउटर के पास पी राउटर के टेबल में अगर 1.0 का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा, तो तुम लोग लाओ। कैसे लाओगे? स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करो, लाओ उसके अंदर राउट का एंट्री 1.0 के लिए जाना है तो सी को सेंड करो। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हें रिसीव ओनली मोड में रखना है या नहीं रखना है। अगर तुम लोग रिसीव ओनली मोड में रखोगे तो अपडेट तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपका नेटवर्क का अपडेट आपका राउटर प्रोपोगेट नहीं करेगा बाहर। तो उस केस में ये नेटवर्क और ये नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो इस पे पाथ नहीं होगा ना 1 को जाने के लिए, तो इस पे तुम्हें मैन्युअली पाथ कॉन्फ़िगर करना होगा टू कम्युनिकेट विद 1.0। क्लियर है? कनेक्टेड, स्टब और कनेक्टेड, इसका मतलब क्या? ये राउटर अगर स्टब और कनेक्टेड है, ये सिर्फ अपने कनेक्टेड नेटवर्क से एडवर्टाइज करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। मतलब मान लो इसके पीछे एक राउटर है और यहाँ पे एक नेटवर्क 10.0, ये राउटर तुम्हारा स्टब है। जब इसको स्टब कॉन्फ़िगर किया है विद कनेक्टेड, इसका ये नेटवर्क राउटर एडवर्टाइज करेगा, लेकिन इसका रिमोट नेटवर्क ये है ना, ये एडवर्टाइज नहीं करेगा। देखो ये फीचर है, जैसा तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में जैसा है वैसा फीचर तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या रिक्वायरमेंट है? अगर तुम्हें तुम्हारे रिमोट नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं करना है, प्रोपोगेट नहीं करना है, तो सब कनेक्टेड डाल दो। लेकिन फिर वापस ये है ना कि इसके साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा? फिर वापस इसके पास एक स्टैटिक रूट डाल दो। इसको तो पता होगा 10 किधर है, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल चल रहा है। कुछ भी करके पैकेट सी तक लाओ। एक बार पैकेट सी तक आ गया, सी करेगा राउटिंग 10 को। सो receive only prevents the stub from sending any types of route. Connected permits the stub to send connected routes. Static मतलब क्या? देखो ये जो भी फीचर्स है, ये क्या कर रहे हैं राउटर को, क्या प्रोपोगेट करेगा, क्या प्रोपोगेट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। तो व्हेन वी से स्टब स्टैटिक, देख एक तो तुमने देखा स्टब रिसीव ओनली, फिर देखा कनेक्टेड, फिर देखा स्टैटिक। कनेक्टेड मतलब क्या? मेरे जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क्स है वही मैं एडवर्टाइज करूंगा। मेरे राउटिंग टेबल में अगर तुम लोग इसका राउटिंग टेबल देखो तो क्या सिर्फ सीसी रहेगा क्या? कुछ राउट्स आरआईपी के रहेंगे। देखो ये अगर ये अपना क्लाउड है ना, ये तो ये अगर एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल से कॉन्फ़िगर्ड है, लेट्स से आरआईपी, तो ये पूरे नेटवर्क यहाँ पे सीसी मतलब ये 3 सी दिखेंगे इसके पास, लेकिन ये 3 सी को छोड़ के बाकी के कुछ आरआईपी के दिख सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक नेटवर्क को तुमने स्टैटिक राउट दिया होगा तो इस पे एक स्टैटिक राउट भी दिख सकता है इसके राउटिंग टेबल के अंदर। तो राउटिंग टेबल के अंदर कनेक्टेड नेटवर्क्स दिख सकते हैं, राउटिंग टेबल के अंदर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स दिख सकते हैं, राउटिंग टेबल के अंदर स्टैटिक रूट दिख सकते हैं। तो ये फीचर क्या प्रोपोगेट करेगा? कनेक्टेड, तो राउटिंग टेबल में जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क्स है उतने ही प्रोपोगेट करेगा। स्टैटिक मतलब इसके राउटर के राउटिंग टेबल में अगर कोई स्टैटिक रूट है
तो सिर्फ वही प्रोपोगेट करेगा आगे। मतलब ये 10 के लिए अगर तुमने ये राउटर पे एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया है, आईपी रूट, लेट्स से ये 2 राउटर है, आईपी रूट 10.0 रीचेबल बाय 2, ये राउटर पे अगर तुम लोग कॉन्फ़िगर किया तो इस राउटर में क्या क्या दिखेगा इसके टेबल के अंदर? कुछ नेटवर्क सी दिखेंगे, कुछ नेटवर्क आर दिखेंगे, कुछ नेटवर्क एस दिखेंगे। तो व्हेन यू कॉन्फ़िगर्ड स्टब स्टैटिक, ये एडवर्टाइज नहीं होगा, ये एडवर्टाइज नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ये स्टैटिक वाला जाएगा आगे। आई हैव मल्टीपल नेटवर्क इंफॉर्मेशन इनटू माय राउटिंग टेबल, कुछ कनेक्टेड है, कुछ स्टैटिक है, कुछ आरआईपी के थ्रू होगा, कुछ ईएचआरपी के थ्रू होगा। देखो अभी तुम जो बेसिक प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें तुम लोग एक राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहे हो, आगे जाके जब तुम लोग शो आईपी रूट करोगे तो तुम्हें ओएसपीएफ भी दिखेगा, उसके अंदर बीजीपी भी दिखेगा, उसके अंदर कोई स्टैटिक रूट भी दिखेगा, उसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट भी दिखेगा, सब 4-5 अलग तरह के राउट्स दिखेंगे। तो उसमें से आगे क्या एडवर्टाइज करना है, दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन टू यू। अभी मान लो तुम लोग आरआईपी का प्रैक्टिकल कर रहे हो, तुम लोग सोचोगे इसमें तो सब आर ही दिख रहा है, क्योंकि उस सभी राउटर पे तुमने एक ही प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया था। लेकिन आईएसपी में एक फिजिकल लेवल पे एक प्रोटोकॉल चलता है ओएसपीएफ, उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल चलेगा बीजीपी, फिर उसके बाद कुछ राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट किए तो वो अलग से दिखेंगे, कुछ के लिए स्टैटिक रूट्स है वो अलग से, तो मतलब शो आईपी राउट करोगे तो 500-600 राउट्स दिखेंगे, उसमें कोई ईएचआरपी हो सकता है, कोई आरआईपी का दिखेगा, कोई ओएसपीएफ होगा, कोई बीजीपी होगा, कोई स्टैटिक होगा, कोई रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो तुम्हें तय करना है तुम्हें आगे क्या प्रोपोगेट करना है, क्या नहीं करना है। तुम्हें अगर सिर्फ स्टैटिक प्रोपोगेट करना है तो तुम लोग स्टब स्टैटिक लिखो, सिर्फ स्टैटिक रूट जितने भी तुम्हारे राउटिंग टेबल में स्टैटिक राउट्स होंगे, मान लो राउटिंग टेबल में 200 राउट्स है, उसमें से 4 स्टैटिक है, वो सिर्फ आगे जाएगा। अगर तुम लोग मेंशन करते हो स्टब कनेक्टेड, तुम्हें राउटिंग टेबल में कनेक्टेड 3 दिखा रहे, बाकी के 197 रिमोट है, तो सिर्फ 3 आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? सो रीडिस्ट्रीब्यूट, कनेक्टेड, स्टैटिक, रिसीव ओनली क्या होगा, मेरे पास 200 है, सामने वाले को कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ उससे आएगा वो रिसीव करके रखूंगा मैं। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माय नेटवर्क इंफॉर्मेशन विद हिम। देन समरी राउट, समरी राउट पता है, समरी राउट, हाँ समरी राउट पता है ना, समरी मतलब समरी, हाँ समरी राउट कौन बताएगा समरी राउट? हाँ मतलब एक एग्जांपल दे सकते हो कोई? पे जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है उसको सीखिए। और कोई अलग प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है? बोल। मेजर हाँ। नेटवर्क का ये एग्जांपल। हाँ मतलब अगर मेरे पास अगर सब नेटवर्क्स है तो राउटर वो सब नेटवर्क किस मेजर नेटवर्क में आता है वो मेजर नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा, दैट इज समरी रूट। तो अगर तुम्हारे राउटर के अंदर मतलब लेट्स से ये तुम्हारा राउटर है, इस पे इतने सारे नेटवर्क्स है 1.0/28/16 और इस पे अगर ऑटो समरी इनेबल्ड है तो ये क्या करेगा, सभी को क्लब करेगा, एक समरी राउट बनेगा और वो समरी राउट आगे एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग लिखते हो कि स्टब समरी, तो जैसे हमने डिस्कस किया इसके राउंड टेबल में क्या होगा, कनेक्टेड हो सकते हैं, ये है ना इतने कनेक्टेड। फिर उसके बाद कोई राउट्स आरआईपी का हो सकता है, कोई राउट्स ओएसपीएफ के हो सकता है, कोई राउट्स बीजीपी के थ्रू हो सकता है, कोई राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसमें से सिर्फ ये समरी राउट है ना, ये सिर्फ आगे प्रोपोगेट होगा, ये बाकी का कोई भी सेंड नहीं करेगा आगे। तो आपको क्या प्रोपोगेट करना है उसका कंट्रोल आपको दिया है।
आप एक एज राउटर पे ये कर रहे हो कॉन्फ़िगर, तो आप कुछ कंट्रोल चाहते हो कि क्या आप आईएसपी को, आपको आईएसपी के साथ आपको क्या शेयर करना है क्या नहीं करना है, दैट इज कंट्रोल गिवन टू यू। आप ये बीच में किसी राउटर पे करोगे क्या कॉन्फ़िगर, ये तो एज पे ही चलने वाला है। तो एज मतलब कौन, कस्टमर का एकदम लास्ट डिवाइस जिसके आगे पूरा आईएसपी है। तो आपको डिसाइड करना है आपको आपके आईएसपी के साथ कौन से राउट शेयर करने हैं कौन से नहीं करने, सिंपल है। अब आपके राउटिंग टेबल में कनेक्टेड नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, स्टैटिक नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, समराइज राउट भी हो सकता है, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल आरआईपी के राउट्स भी हो सकते हैं, बीजीपी की हो सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कहते हो तो आपके टेबल में जितना होगा सब कुछ आगे एडवर्टाइज होगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक मेरे कनेक्टेड नेटवर्क के आगे प्रोपोगेट हो, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि your router is going to not advertise all the networks which are there into his route table, but he's going to advertise only connected networks. आप लिखो स्टैटिक करो, आपके राउट टेबल में 200 राउट्स होंगे लेकिन उसमें जो स्टैटिक रूट है वही सिर्फ आगे जाएगा, समरी राउट है तो वो समरी आगे जाएगा। रिसीव ओनली करोगे तो आपका राउटर आपके खुद के नेटवर्क्स नेबर को कुछ भी नहीं बताएगा, सिर्फ नेबर से रिसीव करेगा वो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फीचर आपको दिया आपके राउटर के ऊपर, इसके वजह से आपको नेबर को क्या प्रोपोगेट करना है उसका कंट्रोल आपके पास है। What you want to share with your neighbor, that control is given to you. आप अपडेट को ब्लॉक नहीं कर सकते। एक बार आपने दोनों के बीच में मान लो आरआईपी रन किया या कोई भी EIGRP दोनों पे रन किया, तो द इंस्टेंट यू रन EIGRP whatever networks I know that will be shared. तो तुम लोग राउटर को ये कहो कि ये शेयर मत कर वो शेयर मत कर। मैं चाहता हूं कि मेरा कनेक्टेड नेटवर्क नहीं शेयर होना चाहिए, या आई हैव 10 कनेक्टेड नेटवर्क्स, मैं चाहता हूं उसमें से 3 ही शेयर हो बाकी के शेयर ना हो। तो ये फीचर से तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो ना। तो वॉट एवर इज, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके राउट टेबल में सब कुछ है वो सब कुछ नेबर को बताओ। अगर सब कुछ नेबर को बताओगे तो नेबर के टेबल में सब कुछ आएगा, एंड यू डोंट वांट दैट एनीवन शुड कम्युनिकेट विद योर नेटवर्क। आप चाहते हो कि आपके 5.0 के साथ कोई बात ना करे, तो क्यों शेयर करोगे तो होगा ना, ट्रैफिक आएगा ना अंदर। तो ये कंट्रोल आपके पास दिया है। आप चाहते हो कि आप पूरे इंटरनेट को एक्सेस करें लेकिन कोई बाहर से ट्रैफिक आपके पास नहीं आना चाहिए, तो वो भी कर सकते हो। तो वो क्या होगा फिर, तुम लोग अगर रिसीव ओनली मोड में डालोगे तो बाहर का पूरा ट्रैफिक आएगा, आएगा या नहीं आएगा? हाँ, आएगा ट्रैफिक आएगा। से जाएगा। तो अगर रिसीव ओनली मोड में डालते हो तो बाहर से पूरा ट्रैफिक अंदर आएगा या नहीं आएगा? अपडेट्स हम्म? ऍक्सेप्ट करेल पण अपडेट्स नाही पाठवले त्याच्या। तिथे थांबून राहतो. रिसीव ओनली मोड में ट्रैफिक मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? बोल रहे हैं पूरा स्क्रीन से। स्टॅटिक केलं तेव्हा एक रिसीव ओनली मोड में बाहर से ट्रैफिक मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा। क्यों? किसको? आगे वाले को पकड़ नहीं गई. मतलब बाहर का नेटवर्क मेरे पास आएगा तो मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं। बाहर से ट्रैफिक मेरे पास कब आएगा? जब बाहर के लोगों को मेरा नेटवर्क पता हो। मेरा नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज किया ही नहीं ना, तो बाहर का ट्रैफिक मेरे पास क्यों आएगा? So when I put my router into receive only mode, मेरे पास अपडेट्स आएंगे, वो अपडेट्स किसी दूसरे नेटवर्क के, वो मेरे राउटिंग टेबल में आएगा, सो आई कैन कम्युनिकेट विद देम। तो मेरा बाहर ट्रैफिक जा सकता है लेकिन बाहर का ट्रैफिक मेरे अंदर कब आएगा? जब मेरा अंदर का नेटवर्क ही मैंने किसी को बताया नहीं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन में कि आपको क्या चाहिए। आप नहीं चाहते बाहर से कोई भी ट्रैफिक अंदर आए तो सिंपली रिसीव ओनली करो। आप चाहते हैं कि मेरे सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बाहर से ट्रैफिक अंदर आना चाहिए। ट्रैफिक अंदर कब आएगा? जब आपने आपका नेटवर्क एडवर्टाइज किया तो ट्रैफिक अंदर आएगा। अब आप क्या एडवर्टाइज करते हो
उस पर डिपेंड करता है कौन सा ट्रैफिक आपके पास आने वाला है, क्योंकि अब जो एडवर्टाइज करोगे नेटवर्क पाथ भी तो वही मिलेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब अगर मेरा 1.0 अगर मैं नेबर को बता रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, मैंने 1.0 मैंने इसको बताया, तो इसको पता चलना कि 1.0 मैंने बताया, इसका मतलब 1.0 मेरे थ्रू रीचेबल है। जब ये 1.0 इसको बताएगा तब इसके टेबल में क्या आएगा, सिंस 1.0 इज इन्फॉर्म्ड बाय हिम सो इट हैज टू बी रीचेबल बाय हिम। तो वैसे अगर मेरा नेटवर्क में बाहर प्रोपोगेट ही नहीं करूंगा तो बाहर के लोगों के राउंड टेबल में मेरा पाथ कैसे होगा मेरे लिए आने के लिए? So if I don't want any traffic to come towards me, then the best option is receive only mode. आप दुनिया भर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो क्योंकि बाहर के लोगों का अपडेट आपके पास आएगा। आपके टेबल में पूरा पूरा एंट्री होगा कि 5 को जाना है कैसे, 6 को जाना है कैसे, 7 को जाना है कैसे, लेकिन किसको ये नहीं पता होगा 1 को जाना है कैसे। फिर वही तुम्हारा स्टैटिक हुआ। आपके पास अगर कोई स्टैटिक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर स्टैटिक रूट है तो सिर्फ वो एडवर्टाइज करो। समरी है तो जो अगर समरी राउट प्रेजेंट होगा सिर्फ समरी राउट एडवर्टाइज होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या फीचर चाहिए स्टब का। स्टब का एक तो पहला फीचर क्या है, जो बेसिक स्टब का फीचर, उसके पास कोई भी क्वेरी नहीं है, स्ट्रेट अवे नेबर को बता देता है आई एम स्टब, प्लीज डोंट सेंड क्वेरी हेंसफोर्थ टू मी। वो एक कंसेप्ट था उसका। स्टब के साथ एडिशनल फीचर ऐड किए। स्टब को तुम लोग रिसीव ओनली मोड में करो, स्टब को स्टैटिक मोड में डालो, स्टब समरी, स्टब कनेक्टेड। तो आपको क्या प्रोपोगेट करना है नेबर को, क्या नहीं करना, उसका कंट्रोल आपके पास। समझ में आ रहा है? तो उसका एक एक एग्जांपल उन्होंने दिया है। अभी यहाँ पे क्या है, कौन सा राउटर, ये R2 उन्होंने स्टब किया है। R2 के पास कितने नेटवर्क्स है, ये 10.1.3 है, 10.1.2 है, ये 10.1.3 है, ये इसके इधर एक राउटर रहेगा, ये ब्लैक कलर का लिंक दिखा है ना, ये लैन है 10.1.2। ये भी एक रिमोट नेटवर्क है, ये भी एक रिमोट नेटवर्क है, यहाँ पे राउटर दिखाया नहीं है लेकिन ये एक रिमोट नेटवर्क है, ये रिमोट नेटवर्क है, ये कनेक्टेड नेटवर्क है। इफ यू कॉन्फ़िगर R2 स्टब, R2 के टेबल में क्या क्या होगा पहले तो वो बताओ। ये कनेक्टेड है वो होगा, मान लो ये R2 R3 और यहाँ पे भी एक राउटर है, यहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल चल रहा है, तो इन सबके बीच में ये नेटवर्क शेयर हुआ होगा ना 10.4 डॉट 10.1.3 डॉट, और ये तो उसका कैंडिडेट। तो इसके राउंड टेबल में क्या होगा, एक सी होगा और ये दो कोई राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। ठीक है, सो इफ यू कॉन्फ़िगर EHRP स्टब कनेक्टेड, R2 क्या एडवर्टाइज करेगा R1 को, R1 ISP है, ये आपका क्लाउड है नीचे वाला पूरा। अब R2 पे आप कमांड दे रहे हो कि EHRP स्टब कनेक्टेड, सो व्हाट यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज, आप सिर्फ ये एडवर्टाइज करो, फिर इसी से ये आगे जाएगा 1 के पास 10.1.2.0। R2 will not be advertising 10.1.0/23 किधर है, हाँ, ये कुछ दिया है क्या, ये इधर है, एक समरी रूट है इस पे। ये मैनुअल समराइजेशन है, समराइजेशन किया है क्या तुमने? हाँ हाँ, मैंने बताया वो मेरा काम हो गया, तुमने किया क्या समराइज? हाँ, प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ के समझ में आया क्या समराइजेशन? हाँ
ठीक है। सो ये आपका ऐसा नेटवर्क है। ऑटो समरी अगर बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है तो क्या होगा? ऑटो समरी अगर बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है तो क्या होगा? हाँ, ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट हर एक राउटर पे इनेबल्ड है तो क्या होगा? मेजर नेटवर्क हाँ, कौन? मेजर नेटवर्क राउटिंग सभी का एक ही एक मेजर तो पहले का राउटर ब्रॉडकास्ट करता नहीं। ठीक है। मतलब अभी भी पढ़ के नहीं है। मेजर नेटवर्क राउटिंग टेबल मध्ये show करेल. सर्वांचा एकच मेजर नेटवर्क राउटिंग चारही बाजूने एकच मेजर नेटवर्क किसके राउंड टेबल में दिखेगा? आर क्या दिखेगा R5 के राउंड टेबल में? मेजर नेटवर्क 1.0 जो है हाँ। /24 हाँ। ये सभी चारों तरफ मतलब चारों जो राउटर है राउटर 1 2 3 4 का एक ही मेजर नेटवर्क हाँ, मतलब R5 के टेबल में क्या दिखेगा? अगर R5 का तुम लोग राउंड टेबल देखते हो तो क्या दिखेगा? हाँ, का हाँ चारों का R1 का भी एंट्री मतलब उसका मेजर नेटवर्क भी 1.0 ऐसे दिखाएगा. R2 का भी 1.0 ऐसे ही दिखाएगा. और R3 का भी और R4 का भी 4 एंट्री आएगी. इससे क्या होगा? राउटिंग टेबल कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर कोई डेस्टिनेशन क्या है और कौन से बताओ डेस्टिनेशन एग्जांपल दो। अगर उस फॉर एग्जांपल R4 पे कोई लैन कनेक्टेड है और है ना लैन? हाँ उसमें से अगर इंफॉर्मेशन सेंड करनी है आगे पैकेट्स भेजने हैं तो वो किस वाया कौन से मेजर नेट सब नेटवर्क के थ्रू रीचेबल होगा वो समझ में नहीं. ऐसे 1 point मेजर नेटवर्क एंट्री सांगी अरे सांग काहीतरी राउटिंग टेबल मध्ये सगळ्यांची इंटरेस्ट कुठे असतील? That means 1.0 reachable by R1, 1.0 reachable by R2, 1.0 reachable by R3, 1.0 reachable by R4. आता काय होईल मग? हा, मग काय होईल? पॅकेट लॉस. मग तुम्ही काय करणार? अलग नहीं, अब किया अलग काय को डालने का भी किया है वो कॉन्फ़िगर. सर ऑटो की जगह मैनुअल नहीं आता, क्या करने का? मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता तो हाँ, प्रत्येक जगह इस ऑप्शन क्या है? तो तेरा बहुत सिलेबस बाकी है, उसको पूरा रिवाइज कर फिर आ. हाँ, ये सेम केस में मुझे ये हो रहा है ना, पैकेट लॉस हो रहा है, तो ये सेम केस में क्या करना होगा? ऑटो समरी को ऑफ करना होगा. तो क्या होगा? तो फिर वो मेजर नेटवर्क की एंट्री राउटर टेबल जो भी नेटवर्क है मेजर नेटवर्क सबकी एंट्री राउटिंग टेबल किसकी एंट्री आएगी? R5 के राउटिंग टेबल में R1 R2 R3 R4 में जो भी नेटवर्क शो कर रहे हैं अभी वो सबकी एंट्री है. कौन से नेटवर्क? सब सब नेटवर्क. तो R5 के टेबल में कितने एंट्रीज दिखेंगे? 60. किससे लूप होगा? हाँ, पैकेट लॉस होगा? नहीं होगा. तो क्या होगा? सिर्फ राउंड टेबल का साइज बढ़ गया, लेकिन प्रिसाइज कम्युनिकेशन होगा. अब राउंड टेबल का साइज कम करने के लिए क्या करना होगा?
समराइजेशन। लेकिन ऑटो करोगे तो क्या होगा, फिर पैकेट लॉस होगा, क्योंकि हर कोई बोलेगा 1.0 बिलोंग्स टू मी। तो मैनुअल करना होगा। तो मैनुअल कैसे करोगे, मान लो ये सबको मुझे एडवर्टाइज करना है, अगर ऑटो समरी ऑफ ऑफ करता हूं तो ये R1 राउटर कितने नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा, 4। समराइजेशन मतलब क्या, तुम्हारे पास कितने भी 20 30 40 नेटवर्क हो, सबको क्लब करके एक दो राउट तुम क्रिएट करो और वो एडवर्टाइज करो, ठीक है, जो कि ऑटो समरी कर रहा था। लेकिन ऑटो समरी की वजह से ये सभी भी इसके अंदर आ रहे थे 1.0 के अंदर। सो यू आर गोइंग टू डू अ मैनुअल समराइजेशन। तो मैनुअल समराइजेशन करने के लिए क्या करना होगा, हाँ, फर्स्ट नेटवर्क का फर्स्ट आईपी और लास्ट नेटवर्क का लास्ट आईपी, एक रेंज फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट नेटवर्क का फर्स्ट आईपी क्या है, 1.0। लास्ट नेटवर्क का लास्ट आईपी 1.63। मतलब तुम्हें रेंज ये मिला। मतलब कितने आईपी आएंगे, 60 63 64 आईपी चाहिए ना एक ब्लॉक। तो 64 का ब्लॉक मतलब कौन सा स्लैश, हाँ, 26 /26। So you are going to advertise 192.168.1.0/26। इसमें 1.0 से लेके 1.60 सब कुछ आएगा। ये एडवर्टाइज करेगा, ये क्या करेगा एडवर्टाइज, 1.64 हाँ 1.64 1.60 बराबर है। इसका फर्स्ट आईपी क्या है और इसका लास्ट आईपी क्या, लास्ट नेटवर्क का लास्ट आईपी। तो ये कितना का ब्लॉक है, 64 से 127 कितना ब्लॉक है, 64 का ब्लॉक। तो ये 64 का ब्लॉक, तो कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज करोगे, 1.64 हाँ 1.64 That's 26. तो ये मैनुअल समराइजेशन कैसे करना है, कमांड से अगर करना है तो ये इंटरफेस के अंदर जाओ, इंटरफेस को बताओगे ना क्या राउट्स शेयर करने हैं। तो आईपी समरी एड्रेस स्पेस प्रोटोकॉल, अगर तुम लोग EIGRP यूज करते हो EIGRP, फिर 10.1.2.0। यहाँ पे तुम लोग, अगर तुम्हें ये एडवर्टाइज करना होता, ये एडवर्टाइज करना होता तो तुम लोग क्या ये राउटर पे कॉन्फ़िगर करते, ये इंटरफेस मान लो 0/0 इंटरफेस F0/0 IP summary address EIGRP 192.168.1.0/26 है ना, /26 का सबनेट मास्क हाँ, /26 का सबनेट मास्क क्या है, 255 तो /24 डालना, सारे 255 तो /32
apply file 26. हाँ नीला ना नीला ना दे दो चरण कमी कमी ट्राई कर कैसा फाइंड आउट करना है? देखो सिंपल है, जो भी तुम्हारा ब्लॉक साइज क्या है तो 64 256 माइनस 64 करने का। अगर ब्लॉक साइज 32 आता है तो 256 माइनस 32 करोगे, मतलब 255 और 255 और 255 224 आएगा। 256 माइनस 32 करोगे 224 आता है लास्ट में। अगर 16 का ब्लॉक साइज स्लैश 28 ब्लॉक साइज 16 है ना, तो उसका सबनेट मास्क निकालना हो तो 256 माइनस 16 करो, तो 255 और 255 और 255 और 240। जो भी ब्लॉक साइज आएगा सबनेट मास्क निकालते वक्त जिस ऑक्टेट में ब्लॉक साइज है ना वो 256 से माइनस करो। तो अगर तुम्हारा स्लैश 25 है तो स्लैश 25 मतलब ब्लॉक साइज कितना, स्लैश 25 का ब्लॉक साइज हाँ म्हणजे 128 तुम्हारा ब्लॉक साइज हुआ, इसलिए 256 माइनस 128 किया तो 255 और 255 और 255 और 128 आया। अगर तुम्हारा स्लैश तो इसका बताओ हर एक के आगे सबनेट मास्क लिखोगे, ये तुम लोग करते नहीं ना इसलिए बार बार में पीछे जाना पड़ता है। म्हणजे सुधारायचं नाही ठरवल्यावर काय करणार माणूस, लिही बिंदास। माइनस
दोनशे छप्पन ऑफिस या काय सुरू किती नेटवर्क किती होस्ट होस्ट नेटवर्क माइनस तर ते समजलं नाही किती होस्ट हो गया हो ते टू 40 सबका सेम है क्लास कुठला हे कुठल्या क्लासमध्ये येईल हा सी मध्ये नाही सी मध्ये येईल का ए मध्ये हा हे कुठल्या क्लासमध्ये येईल ए मध्ये किती जण म्हणतात सी मध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जण आहे बरं का बी मध्ये किती जण म्हणतात 1 2 3 4 5 हात वरती करा 1 2 3 4 5 6 तुझं काय 7 सी मध्ये 8 9 10 11 12 13 घ्या हा ए मध्ये येत नाही अरे किसी भी क्लास में आ सकता है क्लास मतलब क्या हाँ
क्लास मतलब क्या? एक आईपी को आइडेंटिफाई करना है किस क्लास का है, तो कहां पे देखते हो? कौन से ऑक्टेट? उसका पहला ऑक्टेट देखते हो। तो आगे स्लैश कहीं पे भी रहने दो। क्या स्लैश 16 लिया तो वो क्लास सी का नहीं हो सकता क्या? कोई भी क्लास का हो सकता है, कोई भी स्लैश का हो सकता है, क्लास का हो सकता है। क्लास इज ओनली अबाउट योर फर्स्ट ऑक्टेट। 0 to 128 तो फर्स्ट ऑक्टेट, अगर वो रेंज में पहला ऑक्टेट रहा तो वो क्लास ही है। तो पहला ऑक्टेट तुमने 10 लिया, इसका मतलब तुम लोग स्लैश 29 नहीं ले सकते क्या? सिर्फ पहले ऑक्टेट में 10 लिखा है। सबनेटिंग मतलब क्या है? जो स्लैश जैसा चाहिए वैसा तुम लोग यूज करो। तो सबनेट मास्क कोई क्लास से रिलेटेड नहीं है। एनी क्लास यू कैन टेक। 23 255 2 19 dot तो 255 ठीक है। तो ये ऑर्डर पे एक समरी नोट कॉन्फ़िगर था 10.1.2.0 255 255 254.0 मतलब स्लैश कौन सा हुआ? 23। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि अगर स्टब कनेक्टेड है इसका मतलब सिर्फ 1.2.0 1.1.2.0 अटैच होगा, लेकिन 10.1.2.0/23 मतलब एक समरी राउट है वो एडवर्टाइज नहीं होगा। 10.1.3.0/24 ये एडवर्टाइज नहीं होगा। 10.1.4.0/24 ये एडवर्टाइज नहीं होगा। If you are saying EIGRP stub connected, only connected network will be advertised. तो ये राउटर के अंदर ये जो R2 है इसके अंदर क्या क्या है? Some connected networks, then one summary network, then some EIGRP networks, ठीक है, और एक स्टैटिक। तो ये सिर्फ जो कनेक्टेड नेटवर्क है 10.1.2. ये सिर्फ प्रोपोगेट करेगा इफ यू आर सेइंग स्टब कनेक्टेड। If you tell your router R2 stub summary, इसका मतलब ये सिर्फ समरी रूट इंजेक्ट करेगा, प्रोपोगेट करेगा आगे। तो इसके पास कोई समरी रूट है R2 के पास? R2 के पास कोई समरी रूट है जो उसको प्रोपोगेट करे? हाँ, R2 के पास कोई समरी रूट है जो वो प्रोपोगेट करेगा? कौन सा? हाँ, अरे ये समरी एड्रेस लिखा हुआ है ना रे। 10.1.2.0/23 2.0/24 अलग, 2.0/29 अलग, 2.0/23 अलग। तो ये क्या कह रहा है? व्हाट विल बी प्रोपोगेटेड इफ यू टाइप EIGRP स्टब समरी, ही विल शेयर 10.1.2.0/23 ये प्रोपोगेट होगा। तो अभी 10.1.2.0/24 प्रोपोगेट नहीं होगा, 10.1.3.0/24 प्रोपोगेट नहीं होगा, 10.1.4.0/24 प्रोपोगेट नहीं होगा। क्या होगा प्रोपोगेट? जो एक समरी रूट है सिर्फ वही प्रोपोगेट होगा, वही एडवर्टाइज होगा। इफ यू स्पेसिफाई EIGRP स्टब स्टैटिक, तो वो स्टैटिक रूट जो है सिर्फ वही प्रोपोगेट होगा आगे, ना कनेक्टेड प्रोपोगेट होगा, ना समरी नेटवर्क प्रोपोगेट होगा, ना रिमोट नेटवर्क जो लर्न हुआ है वो प्रोपोगेट होगा। दैट मींस ओनली 10.1.4.0 ओनली दैट विल बी प्रोपोगेटेड। 10.1.2.0 खुद का कनेक्टेड नेटवर्क भी प्रोपोगेट नहीं होगा। 10.1.2.0/23 जो एक समरी रूट कॉन्फ़िगर्ड है वो भी प्रोपोगेट नहीं होगा। 10.1.3.0/24 जो रिमोट नेटवर्क है वो भी प्रोपोगेट नहीं होगा। और तुम्हारा 10.1.4.0 नहीं, ये इसके लिए स्टैटिक रूट है ना, हाँ ये प्रोपोगेट होगा, लेकिन बाकी के 3 नहीं होंगे। स्टब रिसीव ओनली,
Nothing will be advertised, but everything you can receive. ठीक है, तो क्या लिखा है? R2 will not advertise anything to R1 because receive only mode पे. R1 needs to have a static route to reach the network behind R2. जब R2 अपना नेटवर्क प्रोपोगेट करेगा नहीं, तो R1 से ट्रैफिक 10.1.2 के लिए क्या कहां से आ सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं ये? सो क्या करोगे फिर? तो ट्रैफिक अगर चाहिए तो स्टैटिक रूट फर्स्ट R1 पे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करोगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स R2, ओनली देन ट्रैफिक विल कम टुवर्ड्स R2 टू कम्युनिकेट विद 10.1.2. तो ये तुम्हारे मल्टीपल स्टब के फीचर्स है जो तुम लोग यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट इज. स्टब रीडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या? जैसे मान लो this is the EIGRP and let's say this is OSPF. यहाँ पे नेटवर्क्स है 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. ये 7.0, ये 8.0, 9.0 और ये 10.0. इसके राउटिंग टेबल में क्या क्या दिखेगा? हाँ, ये फर्स्ट आउट उसके टेबल में क्या क्या दिखेगा? 10.0, 8.0. हाँ, कनेक्टेड, तो ये सभी केबल दिखेंगे. ये पूरा EIGRP है ना. सो फर्स्ट आउट ऑल नोइंग अबाउट एवरीवन मतलब कौन? हाँ, मतलब नेटवर्क बताओ, लिखा क्या है? टाइम पास के लिए लिखा है क्या मैंने? पहले से बताओ. 10.0, हाँ, 2, 3, 4, 5, 6. वो नहीं दिखेगा. क्यों नहीं दिखेगा? वो अलग राउटिंग प्रोटोकॉल में. सो राउट्स बिटवीन टू डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स बाय डिफॉल्ट आर नॉट शेयर्ड. मतलब भले तुम कनेक्टेड हो, बट टू डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स विल नेवर शेयर देयर अपडेट. तो अगर मुझे चाहिए अपडेट शेयर हो, अच्छा इस राउटर को क्या पता होगा जो बीच में बैठा है? जो बीच में बैठा है उसको क्या पता होगा? हाँ, उसको कनेक्टेड नहीं, इसके कनेक्टेड नहीं. 7.0, 2.0. हाँ, क्योंकि वो राउटर पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है. लाइन वैसे ड्रॉ किया है ना, आधा वो आधा OSPF है, आधा EIGRP है. So the router which sits in between, he'll be running with two routing protocols, so he'll be knowing about everything. लेकिन जो प्योर EIGRP उसको सिर्फ EIGRP पता होगा, जो प्योर OSPF उसको सिर्फ OSPF पता होगा, जिसपे दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स को दोनों पता होगा. लेकिन EIGRP को OSPF का कुछ नहीं पता होगा, OSPF को EIGRP का कुछ नहीं पता होगा. क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाला राउटर है इसको दोनों तरफ का पता है. ये लेफ्ट टू राइट कुछ नहीं सेंड कर रहा, राइट टू लेफ्ट कुछ नहीं सेंड कर रहा, बिकॉज ये दो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल है. तो इसके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना होगा. Once you configure redistribution, ये तुम्हारा होगा आगे. Once you configure redistribution, then route from EIGRP will be injected into OSPF and OSPF into EIGRP. मतलब कोई भी दो, RIP हो कोई भी हो. So two different routing protocol routes will be shared only if redistribution is configured on the router which is running two different routing protocols. ठीक है, तो इसके पास 2, 3, 4, 5, 6 भी दिखना चालू होगा, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है. इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप तुम लोग स्टब रीडिस्ट्रीब्यूटेड करते हो, तो जो बाहर से नेटवर्क R2, जैसे ये R2 R1 पूरा EIGRP है और ये क्लाउड OSPF के अंदर है,
तो OSPF का एक नेटवर्क R2 को पता होगा, R1 को पता होगा वो नहीं, क्योंकि R2 का आधा पार्ट OSPF है, R2 का ऊपर वाला पार्ट EIGRP है। तो R2 को ऊपर वाले नेटवर्क्स भी पता होंगे, नीचे वाले नेटवर्क्स भी पता होंगे, बिकॉज सिंस ही इज कॉन्फ़िगर्ड विद 2 राउटिंग प्रोटोकॉल्स, बट R2 इज नॉट गोइंग टू इंजेक्ट एनीथिंग टू R1। वो R1 को कोई भी कुछ भी प्रोपोगेट, कुछ भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो R2 पे अगर तुम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो R2 विल एडवर्टाइज OSPF routes into EIGRP, तब जाके वो R1 को पता है। So if you write EIGRP stub redistributed, only networks which are member of that OSPF cloud, only that will be seen on RIP, sorry on R1। तो R2 के पास कौन से नेटवर्क्स है? ये कनेक्टेड है, ये सॉरी 1.2 कनेक्टेड है, 10.1.3.0 एक रिमोट नेटवर्क है जो भी EIGRP के अंदर है, एक समरी एड्रेस है, एक स्टैटिक रूट है। ये कुछ भी प्रोपोगेट नहीं होगा, सिर्फ जो OSPF के थ्रू आया सिर्फ वो प्रोपोगेट होगा, बाकी उसका खुद का कनेक्टेड नेटवर्क जो स्टैटिक उसके पास था, जो समरी रूट था, कुछ भी प्रोपोगेट नहीं होगा। ओनली द नेटवर्क विच इज पार्ट ऑफ दिस क्लाउड, ओनली दैट विल बी एडवर्टाइज टू आर। तो ये सब कुछ क्या है कि आपको क्या एडवर्टाइज करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर कंट्रोल है आपका। आपको सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, आपको रीडिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, आपको स्टैटिक रूट एडवर्टाइज करना है, आपको कुछ भी एडवर्टाइज नहीं करना है, सिर्फ आप रिसीव करना है। तो ऑल द फीचर्स आर देयर विद योर EIGRP। आप स्टब के साथ जो आपको चाहिए वो कर सकते, ठीक है। ठीक हो गया ये, चलो ये पढ़ो। परसों सबका ओरल होगा, थर्सडे ऑनलाइन सामने आके दे के पूछूंगा। कल मला लेकिन तुम्हारा लेक्चर सुबह रहेगा ना? हाँ सुबह लेक्चर रहेगा ना, विसर्जन सुबह थोड़ी स्टार्ट होता हाँ? क्या सुबह कितने बजे मेरे को? सकाळी काही नसतं रे, हे काय असतं ते 12 नंतर असतं। आणि फार फार तर दुसऱ्या दिवशी, पण दुसऱ्या दिवशी 12 पर्यंत सगळं फ्री होतं। हा हा समजा तुमचं संध्याकाळचं लेक्चर असतं तर ते पॉसिबल नाही। हा पट्टे बंद होतात कल इसका प्रैक्टिकल होगा, और बाद में तुम्हारा ओरल है। उद्या प्रॅक्टिकल असेल आणि त्याच्यानंतर मग तुमचं ओरल। मंडेला ओरल घ्या 2 दिवस काय करणार? तो स्टॅबिलिटी पुढे येईल। स्केलेबल म्हणजे तुम्ही किती रेंज पर्यंत कॉन्फिगर करू शकता स्केलेबल। ओके ठीक आहे, उद्या तुमचं प्रॅक्टिकल असेल। करेक्ट
नाही नाही, तुझा जॉब आहे ना. सरला बोलून घे. I don't know.